So hello friends, in our last video we discussed about the Nernst distribution law. That is, if if we take two immiscible liquid, or if a solute X distributes itself between two immiscible solvents, that is A and B, at constant temperature at X, and X is the same submolecular state in both solvent, then the ratio of concentration of solvent remains constant. This is the Nernst distribution law we have seen in last lectures or last video, and we are going to see their application. हम applications देख रहे थे. पहला application देखा था हमने Nernst distribution law to find out the degree of dissociation, and next one is the distribution law to find out the degree of association. हमने ऐसे इस कुछ तरह से इसके दो applications देखे थे Nernst distribution Nernst law के, degree of dissociation and degree of association. So now we are going to see the next and important application of distribution law, that is extraction. The most important application of this distribution law in industry as well as in laboratory. The process carried out by shaking the aqueous solution with immiscible organic solvent, say either in separating furnace, it's called an extraction. There are two main types of extraction, that is simple extraction and multiple extraction. Extraction के दो main types है, that is पहला है simple extraction. And next one is multiple extraction. The simple extraction means what? The extraction process when carried out with a total amount of a given solvent in a single step. जो extraction हम सिर्फ single step में करते हैं, total extraction in a single step जहाँ पे होता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल एक्सट्रैक्शन. अगर हमें एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक से ज़्यादा स्टेप लगे तो उसे कहा जाएगा मल्टीपल एक्सट्रैक्शन. यहाँ पे हम जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड, वो हम स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करता है. तो व्हेन द एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट इन one or more than one step by using a small amount of organic solvent from total solvent for the same aqueous solution is known as multiple extraction or multi-step extraction. Multiple extraction gives more extraction of organic solvent than single step extraction. यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है. मल्टीपल एक्सट्रैक्शन जब हम स्मॉल स्टेप में जब करते हैं तो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट ज़्यादा मिलता है. इसके लिए कुछ इक्वेशंस है, दैट इज इक्वेशन फॉर द solute left unextracted after nth extraction. Suppose V ml of aqueous solution contain W kg of organic solvent. किसी aqueous solution में VML aqueous solution में हमने W kg हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला हुआ है, तो V1 ml of a given organic solvent is used for extracting in each step. हर स्टेप में V1 ml of given organic solvent is used for extracting. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगी, उसमें फर्स्ट एक्सट्रैक्शन जो सिंपल एक्सट्रैक्शन जैसे भी करते हैं, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन उसे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दैट इज फर्स्ट एक्सट्रैक्शन. तो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में क्या होगा,
फर्स्ट एक्सट्रैक्शन। सपोज कंसीडर x1, यहाँ पे x1 kg सब्सटेंस लेफ्ट अनएक्सट्रैक्टेड। x1 जो है x1 kg अनएक्सट्रैक्ट हुआ एक्वा अनएक्सट्रैक्टेड सब्सटेंस है एक्वा इन एक्वा सॉल्यूशन। so therefore concentration in aqueous layer is equal to x1 by v, x1 by v। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अभी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो बचा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बचा हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन कौन सा? W माइनस x1, बचा हुआ कौन सा है? W में से x1 जो एक्सट्रैक्ट हो गया बचा हुआ, ये हुआ W माइनस x1। कहाँ पे? V1 में। वॉल्यूम कौन सा? ये फिर V1। सो फॉर्म distribution law. So from distribution law, K is equal to x1 by V divided by W minus x1 divided by V1। इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो उसे लिख सकते हैं K is equal to x1 by v। तो यहाँ पे जो नीचे था इसे हम जब ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर था ऊपर ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे इनटू v1 बाय w माइनस x1। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर k इज इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे v इंटू डब्ल्यू माइनस एक्स का, तो हमें मिल जाएगा k ये जो है सर इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या मिलेगा? k v w इज इक्वल टू x1 v1 प्लस k v x1। तो फिर k v w इज इक्वल टू, यहाँ से हमने x1 कॉमन निकाला, x1 इज इक्वल टू फिर k v प्लस v1। यहाँ से हम k की वैल्यू x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये x1 की वैल्यू क्या आएंगी? फिर यहाँ पे x1 इज इक्वल टू के वी बाय के वी प्लस v1 मल्टीप्लाइड बाय w। इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन। ये हो गया हमारी एक्सट्रैक्शन फॉर फर्स्ट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट होगा second extraction. Next one is the second extraction. Second extraction is carried out using the same v1 ml of fresh solvent, v1 ml of fresh solvent and let x2 be the x2 kg be the substance unextracted in aqueous layer। So concentration of that layer, यहाँ पे concentration that layer कितनी होंगी? x2 by v concentration of aqueous layer, और concentration of organic layer कितनी होंगी? x1 से x2 चला गया divided by v1। ऑर्गेनिक ये हो गई aqueous layer और ये हो गई ऑर्गेनिक लेयर। तो फिर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, C water divided by
C of solvent, concentration of water divided by concentration of solvent is equal to K। तो K की वैल्यू क्या मिलेगी, x2 बाय V बाय x1 माइनस x2 बाय V1। यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर K इज इक्वल टू x2 बाय V इंटू V1 बाय x1 माइनस x2। इसे और थोड़ा इसे ये इस टर्म को थोड़ा ए साइड लेके जाएंगे, RHS को LHS में लेके जाएंगे तो फिर के x1 माइनस के x2 इक्वल टू x2 इंटू V1 बाय V2। यहाँ से हम के x1 की वैल्यू निकालेंगे, के x1 इज इक्वल टू, ये जो साइड है ये माइनस है, यहाँ इसको अगर इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे फिर के x2 प्लस x2 V1 बाय V। यहाँ पे x2 कॉमन निकलता है तो फिर क्या बचा, के वी प्लस V1 बाय V इंटू x2 ये हो गया हमारा इक्वल टू के x1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x1 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में हमने x1 की वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 में हमें x1 की वैल्यू मिली थी, x1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज फिर हमें मिलेगा x2 इज इक्वल टू W के वी बाय के वी प्लस V1 इंटू के वी बाय के वी प्लस V1। ये टर्म मतलब क्या होगा, इसका हो गया स्क्वायर यहाँ पे। सो x2 इक्वल टू W ऑफ के वी बाय के वी प्लस V1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज द nth एक्सट्रैक्शन। अभी nth एक्सट्रैक्शन इज सिमिलर टू सेकंड एक्सट्रैक्शन, ओनली nth एक्सट्रैक्शन विल बी कैरिड आउट। सो यहाँ पे सिर्फ क्या लेना है, लेट xn kg बी द सोल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड। यहाँ पे सिर्फ xn kg होगा जो अनएक्सट्रैक्ट हुआ होगा, तो हमें क्या मिलेगा फिर, xn इज इक्वल टू W इंटू के वी बाय के वी प्लस V1 टू द पावर n। जितने भी मोल्स हमने लिए हैं वहाँ का एक्सट्रैक्शन हम इससे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज रुकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं।